السلام علیکم. جی کون صاحب؟ السلام علیکم. جی کون صاحب؟ کون بول رہا ہے؟ جی کون بول رہا ہے؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ. کہاں سے؟ جی مہاراشٹر. اچھا اچھا، مہاراشٹر سے. جی فرمائیے. آپ کہاں سے؟ جی میں یو پی رامپور سے ہوں. آپ رام مہاراشٹر کون سی جگہ سے ہیں؟ بادلی ضلع رامپور ٹنڈا. بادلی ضلع رامپور ٹانڈا سے ہیں آپ؟ ہم یہاں سے مہاراشٹر شولاپور. اچھا شولہ پور سے ہیں آپ. ہاں. اچھا ٹانڈا بادلی سے کون ہے؟ وہاں پڑھے تھے وہاں. اچھا وہیں آپ پہ ٹانڈا نا رامپور جی. اچھا ہاں اچھا. بادلی میں پڑھے ٹنڈا بادلی. کون سے مدرسے میں؟ دارالقرآن میں. وہ مدرسہ نہیں ہے وہاں ایک بڑی مدرسہ. وہ کیا ہے 2012 میں پڑھے تھے وہاں. 2012 میں پڑھے تھے. ہوں. اچھا اور تو یار یہ جو آپ نے نام بتایا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. ہاں یہ جو آپ نے نام بتایا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کون سی جگہ کون کا چیز بتایا آپ نے؟ ہم اپنا ہاں جو مدرسے کا نام بتایا یہ کدھر ہے؟ یہ مدرسہ دارالعلوم بھٹہ نہیں ہے. ہاں ہاں دارالعلوم بھٹہ پتہ ہے نا. ہاں اس کا نام کیا بولا آپ نے؟ ہاتا کر کے ایک سے ہے. ہاتا کر کے ایک وہ فیلڈ ہے. ہاں ہاں میں سب جانتا ہوں ادھر. بھٹے والے کا نام بتایا کیا آپ نے؟ وہ ہاں نہیں تو بھٹے والے کا نام تو کچھ اور تھا نا. بھٹے والا کا نام کچھ اور ہے لیکن اس کے نیچے بغل میں اور ایک مدرسہ ہے. چھوٹا مدرسہ ہے. اچھا 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 ہاں وہی تو میں کہہ رہا نام ہوں. بھول رہے. ہاں نام بھول رہے اس میں بہت دن ہو گئے. ہاں 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 اسی میں پڑے تھے ہاں ہاں قاری ارشد کے پاس. سمجھ گیا. قاری ارشد بھی تو پچھلے محلے کے تھے شاید جو پڑھاتے ہیں وہاں. ہاں 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 قاری ارشد پچھلے محلے میں. ہاں میں بھی وہیں پڑھا ہوں. میں پچھلے محلے میں ہی پڑھا ہوں. جو پچھلے محلے میں جو محلہ مسجد لال کونا میں جو مدرسہ. مدرسہ تھا نا. نہیں لال مدرسہ نہیں. وہ تو دور ہے. ہاں میں پہلے تو ادھر پڑھا تھا جامعہ علم اسلامیہ جہاں پہ عید کا میلہ لگتا تھا. ہاں 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 پہلے یہاں پڑھتا تھا. پھر اس کے بعد میں جو ہے میں روضۃ العلوم میں پڑھتا تھا. وہاں ندی کے بعد میں ہے ایک مدرسہ. وہاں ندی بھی کے ایک پاس. ہے مدرسہ. اچھا وہ تو صدیقیہ مدرسہ ہے. ہاں وہاں بھی ایک ایسا ہے. ہاں وہ قبرستان کے پاس ہی ہے. ہاں 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 قبرستان کے بعد ہی جو ہے وہ ندی ہے. اچھا آپ ہی نے وہ کچھ بھیجا تھا کیا جس کو میں نے ابھی؟ آپ نے کوئی اسٹیکر بھیجا تھا کیا میرے پاس جس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہیں تو وحی نہیں اور نور ہیں تو پھر خاندان نہیں. یہ آپ ہی نے بھیجا تھا کیا؟ ہاں ہاں اچھا تو نبی وہاں اگر گروپ. نور ہیں ہاں اس پہ ہاں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا عقیدہ بھائی جان؟ ہاں اس کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کو؟ میرا دیکھو میں اتنا عالم نہیں ہوں. ہاں لیکن آپ جو ایک گروپ بنا ہے نا ایک گروپ میں ہاں اس میں آپ کا بہت وہ اسٹیکر آ رہا کہ اشرف تھانوی کافر ہے. یہ قاسم نانوتوی کافر ہے. ہاں جی جی اپنا اتنا ہے کہ اپنے کسی کو کافر نہیں کرنے کا. ہاں کسی کو کافر کرنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ کیوں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو کافر کیوں کہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 لوگوں کو جو ہے مسجد نبوی سے بھگایا تھا. وہ بھی نماز پڑھنے آئے تھے بھائی جان. کھانا ہے. ہاں بولے آواز نہیں آ رہی صاحب. بول رہا ہوں کہ مسجد نبوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 لوگوں کو بھگایا تھا جس میں 175 عورتیں تھیں اور 300 کچھ جو ہے وہ لوگ تھے، مرد تھے.
बताइए, हुजूर ने भगाया था, वो नमाज ही तो पढ़ने आए होंगे। सुन तो, अब तो बड़े बड़े हजरत को ही काफिर कह रहे हैं। जी देखिए, उन्होंने कुछ किया है देखो तो इंडिया क्योंकि में मेरे सबसे आपस बड़ा मदरसा भी क्या है, कासिम नानोतवी ने बनाया देवन, तो उसमें से जितना फारिग हो रहा है इसका मतलब कुरान शरीफ जो पढ़ रहे हैं उसके बाद सब काफिर है। हाँ देखिए, जो काफिर होगा उसको काफिर ही कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की शान में तौहीनें की हैं, दीन इस्लाम के खिलाफ जो है उन्होंने बगावत की है। क्या बगावत के? आपका बात करने का नजरिया बदल गया भाईजान। हाँ, नजरिया क्या, हम उस आलिम नहीं, हम बस इतना जानते हैं कि जो अकादिर को हम लोग मानते हैं वो काफिर को, अभी से लोग अकादिर भी बहुत है माशाल्लाह, लेकिन कोई किसी ने कहा कि काफिर है वो। अच्छा ये बताइए भाईजान, हाँ, अभी तेरा तो अकादिर जो है ना, अभी मेरे साथ है कि कुछ कुछ तुम्हारे मौलवी है वो सजदा करा रहा अपने पैर पे, तो वो क्या है, वो जायज है? हमारे यहाँ कोई किसी को सजदा नहीं कराता, ठीक है। अभी हम भेजे, अभी भेजे, व्हाट्सएप भेजे। सुनिए सुनिए, यहाँ का मौलाना नहीं। अरे सुन तो लीजिए। और जो सजदा करा रहा है या वो क्या हकीकत है, वो जो आपने भेजा है उसकी क्या चीज है क्या नहीं है वो, ठीक है। वो कहाँ है, कौन है, वो कौन लोग हैं, उसकी तहकीक कीजिए आप, वो कौन लोग हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, आपने हुजूर के इल्म गैब का इनकार किया था, तो क्या वाकई हुजूर को इल्म गैब हासिल नहीं है? अल्लाह ताला ने हुजूर को गैब का इल्म अता नहीं किया? आलिमुल गैब होता तो देखो, आलिमुल गैब अगर नबी होता ना, मैंने आलिमुल गैब कहा ही नहीं। सुन तो, आलिमुल गैब यहाँ कहता, वो जो बरेली है ना मेरे सामने यहाँ, वो कहता आलिमुल गैब। हाँ सुनो सुनो, वो कौन सा बरेलवी है, वो उसको लाइन पे ले लो जो आलिमुल गैब कहता है। सुन तो, लाइन पे बात कराएंगे तुमसे, नंबर तेरा बात करने का नजरिया बदल गया, तू अपना बात करने का नजरिया ठीक कर, सही कर। सुन, आपको क्या कहना, आलिमुल गैब है ना नहीं है, नबी को बता। मैंने कब कहा कि हुजूर को हम आलिमुल गैब कहते हैं? अच्छा ये बताइए कि जो रसूल पाक को आलिमुल गैब कहेगा उसके ऊपर हुक्म क्या लगेगा? चलिए ये बताइए, क्या हुक्म लगेगा, क्या हुक्म आएगा? फिर वही बात, हुक्म बता दीजिए क्या हुक्म आएगा, फिर मैं बताता हूँ कि किस किस ने तुम्हारे देवबंदियों में हुजूर को आलिमुल गैब कहा है। देवबंदी ने कोई नहीं कहा, बरेलवी ने कहा। चलो बरेलवी ने कहा है, बस हुक्म लगा दीजिए कि क्या हुक्म लगेगा। हुक्म हम नहीं लगाने वाले हैं। क्यों नहीं लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? अभी तो इतना पता है कि आलिमुल गैब नबी नहीं है। तो मैं कब कह रहा हूँ, मेरा दावा कब है कि हुजूर आलिमुल गैब है? यार मेरा दावा कब है? मेरा दावा तो ये है, तुम्हारे मदरसे में पढ़ा हुआ आदमी कहता है आलिमुल गैब है, तो दो किस्म क्यों पढ़ाते तुम लोग? तो लाइन पे ले लो जिस भी आलिम ने कहा हो। अच्छा लाइन पे ले लो, नंबर, हाँ। उसका नंबर नहीं ले लेंगे? नहीं, लाइन पे ले लो, लाइन पे ले लो, किसने कहा है? यहाँ है, बहुत है मेरे गांव में, बहुत। यहाँ तो बात करा दो ना यार, बात करा दो, किसने कहा है हुजूर को आलिमुल गैब? तो हम बोलेंगे नंबर नहीं, उसका नंबर लेंगे फिर आपको। मैंने एक मिनट, मैंने भी आलिमुल गैब हुजूर को नहीं कहा, तुमने मेरे ही ऊपर छोड़ बांध दिया, तो तुमसे बड़ा छोटा और मक्कार कौन होगा यार? मैंने हुजूर को आलिमुल गैब कहा ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि तुमने हुजूर को आलिमुल गैब कहा। जब मैंने नहीं कहा तो तुमने मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा दिया। तुम बरेली है ना? फिर वही बात, मैं बरेलवी हूँ तो मैंने कहा कब के हुजूर आलिमुल गैब हैं? मैंने तो ये कहा, देखिए सुनिए, ज्यादा बौखला के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपके बोलने का, बात करने का अंदाज ही चेंज हो गया है, आपको मिर्ची लग गई है हाई पावर वाली, समझे? ना हमको मिर्ची इसमें लगी, हाँ हमको लगी, हाँ, लेकिन जो बड़े अकाबिर उसको तो। अच्छा ये बताइए, रसूल पाक से भी बड़ा कोई होगा? है ना, अल्लाह है ना। अरे यार, यहाँ बंदों की बात चल रही है कि अल्लाह की बात चल रही है? बंदा में कोई नहीं। हाँ तो तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही को, कासिम नानोतवी को, खलील अहमद मठवी को मैंने कहा कि ये देवबंद के 4 अकाबिर काफिर हैं, तो मैं उनका कुफ्र भी साबित करूंगा इंशाल्लाह। करूं? हाँ तो सुन तो, सुन
बदतमीजी मत कर, अदब से बात कर, जैसे मैं तुझसे अदब से बात कर रहा हूँ वैसे ही अदब से बात कर। कौन बदतमीजी बात किया और कौन नहीं किया? अभी क्या बोले थे तुम? तू कर रहा है ना सुन 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 सुन, तो हाँ? मैं तुझे अदब से बात कर रहा हूँ और तू बदतमीजी से बोल रहा है। अदब और तू किसको किया आलिम, जाता तो है? आलिम है, तू अदब अपनी जहालत क्यों दिखा रहा है? अदब किसको किया जाता है तू पता अभी है? मुझे ठीक से जानता नहीं है, तू मुझसे वाकिफ नहीं है। सामने वाला जैसा बंदा होता मैं वैसे ही बात करता हूँ। अदब किससे किया जाता है पता है? हाँ बोल, किससे किया जाता है? तू अदब का लायक नहीं है ना। अच्छा, फिर कौन है अदब के लायक? अदब का लायक ही नहीं है तू। अच्छा, फिर कौन है अदब के लायक? तू अभी सलाम का जवाब नहीं दिए तो अदब किसको अबे करें हम? मैं किसी बदमजहब बदअकीदे के सलाम का जवाब ही नहीं देता हूँ। आबे पे क्यों आ गया फिर? अबे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तूने कहा कि तू अदब के लायक नहीं है, इसलिए मैं तेरी नहीं है औकात ना। दिखा रहा हूँ। बे शैतान, हाँ? शैतान मत कहो। शैतान से भी बदतर है। शैतान भी तुझे देख के मुस्कुराता होगा कि वाह, ये तो मुझसे भी 4 जूती आगे निकल गया है। चल अरे इसलिए फसा चाहिए तेरे लिए एक दो जब आते से ना। हुए वहाबी देवबंदी पैदा, तो शैतान ने खुश होकर कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। जब से हुए मौलवी रशीद अहमद गंगोही, कासिम ननोतवी, खलील अहमदवी, है ना, ये तुम्हारे 4 बुजुर्ग पैदा, तो शैतान ने खुश होकर कहा लो मैं भी साहिबे औलाद हो गया। बोल लो बोल नहीं लो, मैं तुम्हारे, बताइए किस मौलवी का नंबर लगाऊं, काफिर साबित करूंगा। बोलो कौन से वाले को करना है, नाम लो। सुन तो। हाँ। तुम्हारे नजर में इन 4 में से कौन मुसलमान लगता है तुम्हें, सही वाला? मुसलमान क्या, हमको तो सीधा, तू लोग को तो सीधा मुसलमान कहने का हक भी नहीं बनता है। किसको? जैसे तू लोग बात कर रहा, तू लोग जैसे बात कर रहा ना, मुसलमान कहने का हक भी नहीं कर रहा। हाँ, तो इसीलिए तो वो काफिर है, इसीलिए तो मैंने कहा। हाँ रुक तो, एक लगा रहे हैं एक जगह। अच्छा, लगाओ असगरी बेगम को, चलिए लेकर आओ असगरी बेगम को, लाओ। मैं भी फिर लाइन पे लूंगा। हाँ, मैं भी फिर लाइन पर लूंगा एक साथी को, सिर्फ इसलिए, बात मैं ही करूंगा, ठीक है, बात मैं ही करूंगा, सिर्फ इसलिए कि मेरी कॉल काट के ना भागो। क्या मेरा कॉल काट के ना भागो। कॉल तो नहीं काट रहे हैं। एक तुम्हारा नंबर भी है उसका, एक मौलाना का तुम्हारे इसमें कादरी नाम है। हाँ, उसका नाम कादरी है। हेलो। अरे जनाब, ले ना, किसको ले रहे हो लाइन पे? कादरी हो या कोई और हो, कोई कासमी हो? आप तो किसी कासमी को लेना चाहोगे ना, किसी कादरी को थोड़ी ले रहे होगे। एक मैं भी। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हाँ भाईजान, क्या कह रहे हो? कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक देवबंदी से बात कर रहा था भाईजान। स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। अच्छा, क्या कह रहा है? The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, पर बात करना चाहता, लाइन पर है आपके साथ पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। अभी मत लो, कोई एक बंदा लाइन पे ले रहा है किसी को, ठीक है? आपका कॉल आ रहा था बार, इसलिए मैंने रिसीव कर लिया। मुझे किसी को लाइन पे लेना भी था, लाइन पे रहना साथ में। फोन नहीं उठा रहा। हेलो, The फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, किसको ले रहे थे, कासमी को कि कादरी को? किस जमात के शख्स को आप लाइन पर ले रहे थे, अपनी जमात के या हमारी जमात के? दोनों का ले रहे थे, तुम्हारे भी जमात से हमारे भी जमात से। उन्होंने क्या है वही कहा था। चलो लाइन पे लो, अगर उन्होंने कहा था तो फिर से लो, फिर से कॉल करो। लाओ मुझे नंबर बताओ। नंबर मना, नंबर किसी को नहीं देते, तुमको बात। अरे यार, ये सब हरकतें मेरे सामने नहीं चलेंगे। देखो, ये इसमें के बहुत सारे केस मेरे सामने होते रहते हैं कि नंबर नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे।
अरे बरेलवी है, तुम्हें क्या जाता है नंबर देने को? मैं भी बरेलवी हूँ, वो भी बरेलवी है ना, वो दो नंबर। मेरा भी नंबर उन्होंने लिया। हाँ, अभी मेरा नंबर आज तक वो किसी को नहीं दिया, तो उसको अरे फिर वही बात, ये तुम्हारा बहाना है। अच्छा अहमद रजा भाई, अहमद रजा भाई, आप अपने शिकार को लाइन पे लो, ये बात नहीं करेंगे। कौन? अहमद रजा भाई। अहमद रजा किसका नाम है? जी हजरत। अरे अपने शिकार को लाइन पर लो, ये बात नहीं कर रहे हैं, अपने शिकार को लाइन पे लो। कौन सा देवबंदी है वो? ले रहा हूँ भाई। हाँ ले रहा हूँ, लाइन पे ले रहा हूँ उसी को। हाँ ले लो। इनका कॉल आ रहा था बार बार, इसलिए मैंने कॉल रिसीव किया इनका। कौन है वो? हेलो। अरे ये हमारे मसलक के भाई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी कौन बोल रहा है? हाँ कौन? जी मैं नूर हसन बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं नफीस। नफीस साहब। हाँ जी आपका मसलक? हाँ आपका मसलक? हनफी हूँ। अच्छा हनफी हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो आप मुफ्ती साहब हैं कि मौलवी साहब हैं? आप क्या है? जी मैं एक तालिब इल्म हूँ। हाँ आप तालिब इल्म है ना, तो हम भी तालिब इल्म है अभी। अच्छा ठीक है साहब। अभी हम भी तालिब इल्म। अच्छा जी, आपका क्या कहना था, किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? हम किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे थे, हम बात ये इनसे कर रहे हैं। ऐसा कीजिए ना कि सामने मिल करके बात की जाती तो अच्छा होता। देखिए अब ऐसे ही फोन पे भी बात हो जाएगी। सुनिए हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन मारने की धमकी दे रहे हैं? ये नफीस। नफीस साहब? हाँ। अरे भाई नफीस साहब क्यों मारने की धमकी दे रहे हैं? सुनिए ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं अगर किसी जाहिल को गाली दिया जाए तो वो गाली नहीं है। मतलब हमने इन्होंने जाहिल साबित कर दिया, गाली आके खुद दे रहे हैं और कह रहे हैं किसी जाहिल को गाली देना वो गाली नहीं है। माँ की बहन की सब गाली दे रहे हैं, वो गाली नहीं है। चलो ये तो देवबंदियों की आदत है। रसादी भी जो है ना वो जिना के केस में पकड़ा गया है। लखनऊ वाला जो रसादी फसादी था ना, सही में यार पकड़ा गया है। 3 दिन जेल में भी रह के आया है। अल्लाह। मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है, मुझे बात करने का बड़ा वो था उससे, मैं इससे बात करूं, इसको मुबारकबाद दे दूं। बहरहाल वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। इसमें कई लड़के हैं उसके साथ, कोई लड़के का केस हो गया था। और तो इनमें तो ये चीज आम है ना, मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब और फिर उनके नीचे वाले, और फिर मुफ्ती अजीजुर रहमान जो पाकिस्तान वाला था, ये भी पकड़ा गया, और बहुत सारे हैं मामले। बहरहाल अच्छे सब पकड़े गए। जी अनीस भाई। हाँ जी अनीस साहब। नफीस नाम है, क्या नाम बताया था इन्होंने? नफीस अनीस? नफीस नाम है जी नफीस साहब। हाँ जी बोलिए, किस मौजू पर बात करेंगे? नहीं तो हम ऐसे नहीं बात करेंगे ना। और कैसे बात करोगे? ऐसे नहीं बात करेंगे, हम सामने से बात करेंगे भाई, दलाल के साथ, हदीस के साथ, सामने बैठ करके किताबों के साथ। तो वो क्या किसी बात कर अच्छा रहे हैं? एक मिनट एक मिनट। आप कहाँ से हो भाईजान? हम फिर वहाँ बंदा भेज देते हैं। अच्छा आप बनारस से हैं? अच्छा तो ठीक है, हम आपके पास बंदा भेज दें। ये बात हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है ये बात करोगे? जब समझ में आए आप भेज सकते हैं हमको। अच्छा तो वाकई आप बात करेंगे? जी इंशाअल्लाह जरूर बात करेंगे। पीछे भागने वाले में तो हम। बोलिए किस मौजू पर आपको बात करनी है? हाँ किस मौजू पर आप बात करेंगे? नहीं ये बात कर रहे थे ना, क्योंकि आप तो साबित करो, तो वही हमको ये बताओ चलो यही साबित कर दो। तुम साबित कर रहे तो यही साबित कर दो। हाँ तो वही तो सामने बैठ करके साबित किया जाएगा ना। ये तो राय है करने को बोले तो तुम मारने की धमकी दे रहे हो, पास बुला के हमको मारपीट करने वाले दिख रहे क्या? पूछो कि इनका माखज क्या है, मनहज क्या है। हाँ वो सब सामने आइए सब बताएंगे। अच्छा ये बताइए, आपके बड़ों की बात आपके सर आंखों पर है कि नहीं? एकदम। अच्छा तो आपके बड़ों की बात ही मानी जाएगी, ना कि छोटों की बात मानी जाएगी? क्योंकि उन्होंने लिखा भी है कि बात बड़ों की मानी जाती है, छोटों की नहीं। हाँ है ना?
तो फिर आप मुझसे बात करने के लिए राजी क्यों नहीं रहे? जो आपके बुजुर्गों ने, जो आपके अकाबिरों ने जो आपको सिखाया है, जो आपके अकाबिरीन ने आपको पढ़ाया है, तो उसी पर बात कर लीजिए यार। एक और आप लाइन पर हैं, करेंगे ना, हम फोन पे बात नहीं करेंगे, हम फोन पे बात नहीं करेंगे, हम सामने बात करेंगे। एक मुख्तार साहब हैं आपके लाइन पर, उनसे बात कर रहा था, वो भी बोले किसी को लाइन पे ला रहा हूँ, वो भी नहीं लेकर आए। अब आप भी राह फरारी कर रहे हो। तो हाँ नहीं, तो हम लोग वही है मसला, हम लोगों का ये है ना कि हम लोग डायरेक्टली किताब से बात करते हैं, मसला मतलब एकदम सामने पूरा हाल पूरा, तो हम लोग बढ़ाते हैं क्या? वही तो कर रहे हैं। मोबाइल होती है, सुनो, हम आपको दिखाएंगे किताब तो आप मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं ऐसे लिखा है, तो हम किताब पूरी दिखाएंगे ना आपको। किस किताब की तुम बात कर रहे हो? जिस किताब से मसला आपकी किताब में लिखा है, गाली नहीं है, किस किताब में लिखा है? अबे भाई वो सब बात खत्म कर चुका है ना। अरे ऐसे कैसे खत्म करते हो यार? बात खत्म करे, बात वहीं से तुम शुरू की हो, ठीक है? सुनिए हम अपनी गलती बता रहे हैं, ठीक है? हमको आगे मतलब बोले भाई आप इधर उधर बात किए, लगे तुरंत हमने गाली देने, तो गाली होती नहीं, तो कहाँ पे दिए थे ये पहले उनको बताओ। जो हमें दोनों पहले मेरी बात को गाली किस बिना पर दी है तो पहले उनको बताओ, उसके बाद बात करो। वो बता रहे गाली तुम मेरी गलती तो नहीं दी, तुम मुझे बेवजह गाली दी, तुम साबित करो किस बात से गाली दी। हम उनको गाली दिए थे। इजहार किसका नाम है? हमने नाम लेकर तो गाली दिए नहीं तो उस वक्त नहीं। इजहार तुम्हें नाम लेकर गाली नहीं दिए थे तो हम भाई दे सकते हैं, इनको वॉइस भी दे सकते हैं, ठीक है? और तुमको मना भी गाली मिलने को बोल रहे, फोन पे हमसे भी बात नहीं करो, इनसे भी बात नहीं करो, तीन के बाद नहीं करते। ये तुमने गाली देने की बात क्यों की? हाँ, तुमने गाली देने की बात, हाँ काटने की उनको धमकी दी उन्होंने। हाँ तो क्या कहेंगे? कहाँ है एड्रेस बताइए अपना, क्या कहाँ आना है बताइए एड्रेस। मैं अपना एड्रेस बताऊं? जी बताइए। बात करने के लिए आएंगे कि या मतलब मारपीट करने के लिए आएंगे, वो भी बता दीजिए ना। तो क्या मारपीट करना चाहते हैं कि मुनाजरा करना चाहते हैं? नहीं, मुनाजरा कर लीजिए, हम तो चाहते हैं यही फाइनल हो जाए, इनको बहुत शौक है। तो बताइए ना कहाँ आएंगे, दिन तारीख में आ जाइए, जगह में आ जाइएगा, लखनऊ लाइब्रेरी में आ जाइए। क्या बोलते हैं, जगह हम लोग फिक्स करते हैं दिन तारीख। देखिए एक बात बताइए, हम इतनी बार तुम्हारे लोगों के यहाँ पे गए हैं, सुनिए तो हम लोग देवबंदियों के यहाँ इतनी बार गए हैं, वो धोखा दे देते हैं। आप भी उन्हीं में से हैं। कहाँ पे? आज तक बहुत जगह हम लोग गए हैं, बात ही नहीं करते, कहते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी एक जगह हाँ किसी एक का नाम, अरे मैं खुद अपने गांव की बात कर रहा हूँ, मेरे गांव में भी ऐसा ही हुआ मामला। बोले हाँ आमने सामने बात करेंगे, जब हुआ अरे यार लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, छोड़ो यार। दूसरा सुनो, अरे दूसरा सुनो ना। लखनऊ में एक देवबंदी ने मुझे बुलाया, मुझे मारने की धमकी दी। अरे सुनो तो यार, अरे यार बड़बड़ा क्यों रहे हो भाई? अरे बड़बड़ा क्यों रहे हो यार? मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। ये ऐसे ही मतलब लखनऊ में मुझे एक ने धमकी दी और बोला कि तू लखनऊ आ जा, मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मार डालूंगा। मैंने कहा तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। हमने तो ये भी कहे, समझे? मैं गया वहाँ, उसको मैंने कहा मैं लखनऊ आ चुका हूँ, तेरे पास आधे से 1 घंटे में पहुंचने वाला हूँ, ठीक है? मैंने कहा तू जहाँ भी हो आ जा। उसने कहा कि आज मुलाकात नहीं होगी, आज बातचीत नहीं होगी। मुझसे जो हल करने आया वो हल कर भाई, मुझसे पुरानी बात मत कर, मुझसे जाओ। ये सब राय फिरारी है तुम्हारी कि यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ना कोई बंदा वहाँ जाएगा, ना तुम बात करोगे, और मैं भेजूंगा तो तुम्हारे यहाँ का ही भेज दूंगा इंशाल्लाह, समझे? बात अगर तुम करो तो वादा करो, खुदा की कसम खाओ कि हाँ तुम वादा, अच्छा खुदा की कसम खाओ कि तुम बात करोगे, जरूरी तुम ही बात करोगे, कोई और करेगा ये भी बता दो। मेरे आलिम बात करेंगे ना, तो तुम अपने आलिम को तैयार करा लो, लाइन पे लाओ, वो कौन है जो बात करेगा। तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम खुदा की कसम खा लेते हो, कुरान की कसम खा लेते हो। लाइन पे लाओ उस आलिम को जिससे आपको बात करानी है, लाओ जल्दी ले लो उस आलिम को लाइन पे। देवबंद, अरे भाई तुम देवबंद के आलिम को लाइन पे ले लो, चाहे मुझे वहां खुद पहुंचना पड़े, इंशाल्लाह मैं पहुंचूंगा बात करने के लिए। सुनो,
सुनो, चाहे मुझे खुद वहां पहुंचना पड़े, तुम अपने आलिम से वादा कराओ, लाइन पे लो आलिम को अपने। फोन की बात करिए, ठीक है, बात करिए। हाँ जल्दी बात कराइए। दो यार। हेलो। हाँ हाँ बात कराइए। नहीं दे रहे हो? नंबर दे रहे हो, लाओ नंबर दो, लाओ। तुम भी अली असगर का नंबर दोगे या किसका दोगे? लाओ, या आरिफ का दोगे? तुम्हारे यहाँ कोई आलिम तो बचा नहीं है, बस यही दो आलिम बचे हुए हैं। लाओ नंबर दो जल्दी से। ये बस क्या बात करेंगे, हमसे कोई नहीं बात करे, बस वही। अरे लाओ यार नंबर दो यार। देखो नहीं बोल रहा है वो। मैंने कहा बात कराओ, बात नहीं करा रहे हो, तुम कह रहे हो नंबर लो, तो नंबर नहीं दे रहे हो, नंबर दो ना। नंबर दो, नंबर दो। या बात कराओ। अरे नंबर दे दो या बात करा दो। क्या करना है भाई? ये तो फोन बात से बात गया गया। आ जाओ भाई। बस यही हकीकत है इनकी, बस यही औकात है। हाँ जी मुख्तार साहब, अब तुम्हारा क्या कहना है, बोलिए जरा जल्दी से। हाँ जी मुख्तार साहब। जी आपका क्या कहना है, बोलिए। तुम कह रहे थे कि अगर अल्लाह के नबी को आलिमुल गैब माना, आलिमुल गैब माना किसने हुजूर को? अरे आप क्या कर रहे हो भाई, किसको किसने कॉल लगा दिया? उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो, क्या हुआ? स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने क्या हुआ? किसने किसको कॉल लगा दिया? बात समझ में नहीं आई। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आया नफीस, लाइन पे आया? से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। एक मिनट। The person you are speaking with फिर भाग गया? has put your call on hold. Please stay on the line. ये तो बड़ा कर रहा हो बात कर रहे हैं जो है जमरिया का साला कमीना, हमें वहाँ बुला के फिर धोखा देता। जब अभी से धोखा दे दिया, बात नहीं करा रही। हाँ हेलो, कौन है? नूर हसन है। अरे नफीस, बात करोगे कि नहीं करोगे? तुम जो अपने आलिम को बात कराने। अरे तुम्हारा अरे पहले अपना नाम बताओ। आपकी क्या, आपका नाम जी? अरे अभी तो तुम मुझसे बात कर रहे थे ना, कौन बोल रहे हो तुम? नया बंदा कोई आया है क्या? अरे मैं कोई और हूँ। हाँ मैं अहमद, सुनो मेरा नाम सुनो। मैं अहमद रजा सानी देवबंदी हनफी झारखंड से। ठीक है ना? अच्छा, आपका मतलब देवबंदी है, आप झारखंड से हैं, शायद आप मुफ्ती हैं, मौलवी हैं? आप मेरे नाम सुनते। कौन? मैं आलिम दीन हूँ जी। सुनिए मेरी मैं कहाँ इल्म हासिल किया हूँ, ये मत बताइए, सिर्फ इतना बताइए कि आप क्या हैं, मौलवी हैं या मुफ्ती से किया हूँ। हाँ बोलो। अच्छा सुनो, एक हाँ। मिनट सुनो। आपका नाम क्या है? आपने तो पहले ही बता दिया ना, मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, आपको तो मेरा नाम सुनते फट गया होगा। तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो ये आलिमों की जबान थोड़ी है। नूर लड़ना आए हो, गाली बकना आए हो, बदतमीजी करना आए हो या बात करना आए हो, पहले तो ये बोलो। मैंने आपको बदतमीजी बोली कि आपकी फटी या नहीं फटी? तरह से बताता हूँ। नहीं देखो, ये बदतमीजी है, ये लड़ाई है, ये लड़ाई की बातें चालू कर रहे हो। मैंने तो नहीं कहा कि तुम्हारी फटी या नहीं फटी। यहाँ फटी और ना फटी की क्या है, बात करो यार। आलिम दीन हो तुम, अपने आप को आलिम दीन बता रहे हो, तो बात करो ना उसी हिसाब से। हाँ तो सुनो ना। हाँ बोलिए। उस दिन आपने कॉल किया था, फिर वही बात, उस दिन और उस दिन, ये उस दिन और उस दिन की बात छोड़ो, किस मौजू पर बात करोगे ये बोलो। हाँ ठीक है। अभी आज फिर हम लोग फिर बहस करते हैं क्या? क्या कहते हैं? आज फिर से बात करते हैं, क्या कहते हैं? अबे इल्मे गैब पर बात करोगे, हाजिर और नाजिर पर बात करोगे, नूरो बशर पर बात करोगे, इख्तियार रसूल पर बात करोगे, किस मौजू पर बात करोगे ये बोलो। इल्मे गैब हुजूर के लिए तुम मानते हो या नहीं मानते हो? हुजूर के लिए तुम नूरो बशर का क्या अकीदा रखते हो, क्या नहीं रखते? हुजूर के इख्तियार का क्या अकीदा रखते हो, क्या नहीं रखते? पहले उसको बोलने को मौजू पहले देखो, सुन लो मेरे पास। हाँ बोलो, एक मौजू की सुन। नाजिर दूर की बात है, पहले हम बहस करेंगे नबी की जात साबित करेंगे क्या है, नूर है या बशर है, ठीक है ना? नबी की जात साबित करेंगे।
آپ کیا مانتے ہو؟ چلیے آپ پہلے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیجیے. میں ظاہر کروں گا پہلے. جی 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 جی. اچھا تو ٹھیک ہے, میرا موقف. اور بعد میں توڑ مروڑ مت کرنا, ابھی بتا دینا فل طریقے سے. ہلو اظہر بھائی, ہاں تو سنو نا. جی. ہاں تو آپ کو پہلے ظاہر کرتا نا تو وہی ٹھیک ہوتا. ارے بیچ میں سے سب چکو. ایک منٹ آپ نے کس موضوع پہ بات کرو گے؟ نور بھائی بات کرنا کس موضوع پہ بات کرو گے؟ علم غیب, حاضر ناظر. ارے تم نے کہا کہ پہلے رسول اللہ کی ذات کو جو ہے کلیئر کر لیتے ہیں, تو پھر آپ اسی پر بات کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نور مانتے ہو یا بشر مانتے ہو یا دونوں مانتے ہو. آپ کی جواب میں نے کہا کہ پہلے رسول اللہ کی ذات ثابت کریں گے, تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ نور بشر پر بحث کریں گے, تو اب آپ موقف ظاہر کرنا آپ کی ذمہ ہے, تو موقف آپ ظاہر کیجیے پہلے. دیکھیے یہ کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتا ہوں اور بشر بھی مانتا ہوں, میں دونوں مانتا ہوں. آپ بتائیے, آپ ایک مانتے ہیں یا آپ بھی دونوں مانتے ہیں؟ ارے بھائی, آپ نبی کو نور بھی مان لیتے ہیں اور بشر بھی مان لیتے ہیں, تو اور دونوں قرآن سے مانتا ہوں. اختلاف نہیں ہے. آپ دونوں کو قرآن سے مانتا ہوں. یاد رکھنا, پہلے اس کا بات تو سنو. تو بکری کا طرف بھی چلا رہا ہے بیچ میں. میرے سامنے جب بولتا ہوں اور میرے سامنے کوئی بولتا نا تو بہت چڑ لگتا ہوں, تو ٹھیک ہے نا, میری بات ہو جائے گی, پھر میں آپ کو بولوں گا کہ میری طرف سے آپ کو کوئی طنز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ کو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ مت بولیے, آپ کو بولنے کی اجازت میں دوں گا, پہلے میری بات پوری ہو جائے اس کے بعد, ٹھیک ہے نا. میں آپ نے کہا کہ میں نور اور بشر دونوں مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہیلو جی جی جی. ہیلو. ارے ہاں بول رہا ہوں, تمہیں آواز نہیں جا رہی کیا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے, ابھی آواز آ رہی. ہاں آپ نے کہا کہ میں نور اور بشر دونوں مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہیلو. ہاں مانتا ہوں بھائی, بولا دو میں نے. ہاں ٹھیک ٹھیک. تو اب یہ بتائیے کہ نور کس طرح مانتے ہیں اور اس کی ذات کس طرح ہے, نبی کی ذات کس طرح. میں نے اپنا مسلمانوں دیکھیے, حق یہ بنتا ہے جب میں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا, ظاہر کر دیا, تو اب باری ان کی ہے کہ وہ پہلے اب اپنا عقیدہ ظاہر کریں کہ وہ کیا مانتے ہیں حضور کو. یہ اصول بنتا ہے, اصول کے تحت بات کریں نا. بالکل نہیں, کچھ نہیں, پہلے یہاں دونوں چیزیں رکھی جائیں گی, پہلے دونوں چیز نہ یہ اصول ہی نہیں ہے. آپ اصول سے ہٹ کے بات کر رہے ہو. میں نے کب کہا کہ میں بیان, لیکن آپ کو پہلے کچھ نہیں. اب آپ کو بھی پہلے, یہ تو آگے بعد میں بات ہوگی نا, یہ تو آگے بعد میں بات ہوگی. اب پہلے آپ اپنا نظریہ رکھیے. دیکھیے بھائی دیوبندیوں, دیکھ لو, یہ ہے تمہارے مولوی کی اوقات. ارے مجھ سے میرا عقیدہ پوچھ لیا, میں نے تو پہلے کہا تھا کہ تم بتاؤ کہ حضور کو کیا مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو. تم بات بول رہے ہیں, سمجھے. ارے اب دیوبندی چپ نا, اے دیوبندی چپ. دیکھیے مسلمانوں, ان لوگوں کی یہی حقیقت ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہو, نور مانتے ہو یا بشر مانتے ہو یا دونوں مانتے ہو. اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا, پہلے تم بتاؤ. میں نے بتا دیا. اب میں نے بتا دیا تو باری ان کی ہے, تو اب ان کو چاہیے نا کہ یہ بتائیں کہ حضور کو یہ کیا مانتے ہیں. بتائیے بتائیے آپ کیا مانتے ہیں. میری بات سن لیجیے, میں وہ بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بیان کر رہا ہوں, سنو. جی بتائیے. تم نے کہا میں نبی کو بشر بھی مانتا ہوں اور نور بھی مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ میں رسول کو بشر بھی مانتا ہوں اور نور بھی مانتا ہوں. کوئی بات ہے نہیں, آپ جو بھی مانتے ہیں اس کو کلیئر بیان کیجئے. حضور کو نور اور بشر دونوں مانتے ہیں یا صرف ایک مانتے ہیں؟ بشر بھی مانتا ہوں, نور بھی مانتا ہوں. تو پھر ہمارا اس میں جھگڑا ہی نہیں بچا. اگر اس طرح بات ہوتی کہ تم بھی نبی کو بشر مانتے ہو, نور مانتے ہو, میں بھی نبی کو بشر مانتا ہوں, کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. اختلاف یہاں ہے کہ تم نبی کو بشر حقیقت میں مانتے ہو یا پھر بشر ہونا آپ کی صفت ہے, یہ اصل پوائنٹ ہے نا. تو میری اس طرح سے سن لو, میرا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ حقیقت میں بشر ہیں اور نور ہونا آپ کی ذات نہیں بلکہ صفت ہے. اچھا یہ بتائیے حقیقت جو ہوتی ہے وہ شروع میں ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے؟ حقیقت نبی کی حقیقت شروع میں ہوتی ہے. حقیقت شروع میں, تو نبی پہلے بشر تھے. ایک منٹ, نبی جو ہے پہلے سے بشر تھے. بالکل بشر تھے, بشریت کے لباس میں نہیں بلکہ حقیقت میں بشر تھے.
अच्छा अच्छा आपका बशर होना हकीकत है। अच्छा, तो पहले नबी का बशरियत, नबी की बशरियत जो है पैदा की अल्लाह ताला ने। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा किया तो वो काफिर है, मुशरिक है, क्या है? हुक्म लगाइए अब। बिल्कुल गलत। देखिए अभी आपने दलील भी नहीं दी और पहले हुक्म तलब करने लगा। जब इंसान ने यार यही जब आपका और मेरा दोनों का अकीदा वादे हो गया, दिया है देखिए और हुक्म बोल रहा है। देखिए देखो आप, देखो आलिमो, और क्या बोलते हैं, आपका और मेरा, सुनिए चिपट गवार है। देखिए मुसलमानों, देखिए आप ये बदतमीजी कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना बदतमीजी। तुम दलील दो। तुम कह रहे हो कि नबी बशर है और नूर है, तो नूर और बशर किस तरह है? हकीकत में आपकी जात क्या है? तुम बोलो पहले। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हकीकत है वो नूर है। अच्छा। मेरे नबी के नूर को सबसे पहले अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, फिर उसके बाद सारी कायनात को जो है पैदा किया, तख्लीक किया। मेरे नबी की जो हकीकत है वो नूर है। बशरी लिबास में अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए भेजा कि हमारी जो है हिदायत हो सके, हमें जो है कुछ नसीहत हो सके, हमें मेरे नबी समझा सके। हाँ, बात इतनी लंबी करने की घुमाने की जरूरत। अरे ये मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, मैं बात को घुमा रहा हूँ क्या? मैं बात को लंबा कर रहा हूँ क्या? बात को घुमा, अरे इतना कम अकल नहीं है कि मैं समझ सकता। अरे कम अकल ही हो, कम अकल नहीं होते तो इस पर बहस ही नहीं करते। कम अकल ही हो। अब फेंकना मत जैसे को सुनो ना, आपकी दलील दो ना, चाहे इतना घुमा रहा है। हाँ, दलील मांग रहा, दलील दो ना, बकरी का तरफ। अरे मेरी तरफ से कोई बोल रहा है, चिल्ले के पिल्लो, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? तो दलील नहीं बोलेगा, हमारे तरफ से खामोश करो, खामोश करो, खामोश बैठा हुआ सबसे सुन रहा, कौन कैसे बोल रहा है? दलील। हाँ किसी के पास तो अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ। ठीक है, दलील। हाँ, अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपनी सनद के साथ, कौन में है, सब जोर से सुनना, ठीक है ना? हाँ देखिए, सुनिए, अब मैं सुना रहा हूँ। हाँ, सुना। अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपनी सनद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं बोलता हूँ, तुम क्यों बोलते हो भाई? अरे बोलना बोल रहा हूँ, कान तरफ चुप। अब्दुल रज़्ज़ाक़ अपनी सनद के साथ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया कि मैंने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, मुझको खबर दीजिए कि सब अशिया से पहले, सारी चीजों से पहले, सारी शय से पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज पैदा फरमाई? आपने फरमाया, ए जाबिर रजी अल्लाह ताला ने सब अशिया से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। माशाअल्लाह, बोलिए, आगे बोलिए। जी जनाब, आगे सुने अभी। तेरे नबी का नूर अपने नबी के नूर से, समझे जनाब? अच्छा, नहीं माना कि नूर इलाही इसका मादा था, बल्कि अपने नूर के फैज से पैदा किया। फिर वो नूर कुदरत इलाही से जहां अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, सैर करता रहा। समझे जनाब? अच्छा जी, बात आपके समझ में आ गई? बोलिए यार, बात आपके समझ में आई? आपकी बात पूरी हो गई? नहीं, अभी तो और बहुत है, बहुत कुछ बता सकता हूँ। अभी तो मेरे नबी के नूर की तख्लीक की बात चल रही है। आपकी बात पूरी हो गई, अब मैं कुछ कहूँ? अभी बात तो पूरी नहीं हुई, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, या मुझे बात पूरी करने दीजिए। कहना चाहता नहीं, पूरी दुनिया के डालूंगा, भी सुनो तो सही। जी सुनाइए। तूने रिवायत पेश की, रिवायत की हकीकत क्या थी जानता नहीं, मैं किताब छाप चुका हूँ इसके सिलसिले में। शुक्रिया, सुनाइए। हाँ, जो रिवायत तुमने मुस्नदुल फिरदौस से पेश किया है, कहाँ से पेश किया? मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ से, है ना? सही सनद के साथ आपने बयान किया, हालांकि आपने सही सनद बयान नहीं किया। आपने या जाबिर से रिवायत पेश किया, या जाबिर खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्ल अल-अशिया नूर नबिय्यिका मिन नूरिही, ठीक है ना? अच्छा, आपने ये रिवायत पेश की है। अच्छा, और आपने सनद की एतबार से बात की, जबकि आपने सनद बयान किया ही नहीं। अच्छा, ठीक है ना? दूसरी बात, तो हाँ जनाब अली, आप सुनते रहे। मेरे बोलने पे हुक्म क्या लगेगा ये भी बता दीजिए।
डायरेक्ट अभी मैं कुछ बोला नहीं, तुम लगा दीजिए यार हुक्म, कुछ कहा नहीं, तब तक बहुत जल्दी लगा दीजिए। तुम हुक्म तलब करने लगे। इसी को कहते मुनाफिर दे बेवकूफ। अभी बदतमीजी मत कर, बदतमीजी मत कर, वरना तू अभी मुझे जानता नहीं है ठीक तरीके से। जैसे मैं बात कर रहा हूँ उसी तरह बात कर। इसको बोलने तो दे, इसको बोलने तो दे। ए चिल्ले के पिल्ले, जमातियों की मेहनत के नतीजे, चुप खामोश रहे तू उधर पीछे से। चैनल में सब्सक्राइब कराए अभी मेरा 1000 हो चुका है, ठीक है ना। अभी डालूंगा इसको मैं। डाल, बिल्कुल डाल। सुन ले मेरी पता है मैंने कौन सी किताब से हवाला दिया है? ये किताब का नाम है नशरुत्तीब, लिखने वाले का नाम है हरामी थानवी वलदुज़्ज़िना। होश उड़ जाएंगे तेरे, होश उड़ जाएंगे। इस किताब से मैंने तुझे हवाला दिया है। लगा दो इसको, लगा दो इसको, लगा फतवा। कहाँ से दिया मैं बोल रहा हूँ ना, तुमने मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ से दिया है, ठीक है ना। जितनी तुझसे कमी निकाली जाए वो सारी कमी निकाल के रख दे आज। भाई भी देखो थानवी जाहिल कितना बड़ा अहमक इंसान था, कितना बड़ा जाहिल था थानवी। निकाल कमी है इसमें जो मैंने पढ़ के बताया है। पता चल गया तो देखो देख लिया ना इसकी हकीकत, देख लिया, पानी पता चल गया। अरे तूने थानवी जाहिल की हकीकत दिखा दी कि तुमने सही नहीं पढ़ा। हालांकि मुसलमानों इस किताब नशरुत्तीब को आप चेक कर सकते हैं, जो इसमें लिखा मैंने वही पढ़ा। चलो आगे की बात बोलो तुम। मैंने अभी गलती की। अरे अभी सही कैसे कहने लगा? तू तो कह रहा था गलत पढ़ा है, ये करा है, वो करा है, सही नहीं किया है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया। अभी तो तू 1000 कमियां निकाला था, अब कैसे सही हो गया? अब एकदम कैसे सही कैसे हो गया ये? मैंने सही कहा जाहिल। अरे बहरहाल ये मैंने गलती की तुझे बता के, सुन, मैंने गलती की ये बता के, मगर ये मैंने तुझे इसलिए बताया, ठीक है। तुम जो बड़बड़ा रहे हो, ठीक है, तुम जो बड़बड़ा रहे हो पीछे से, तुम्हारा चिल्ले का पिल्ला जो लोकमा दे रहा है तुम्हें, ठीक है। मेरी बात सुनेगा, मेरी बात सुनेगा तुम, मेरी बात। अब तो इसमें कमी निकाल, मैंने क्या क्या कमी निकाल, कमी मैंने क्या गलत कहा है वो पढ़ के बता। हाँ नूर हसन सुन, तुमने जो हदीस पेश की है, अरे फिर वही बात जो मैंने हदीस पेश की है। थानवी हरामी जाहिल झूठा है कि नहीं, मक्कार है कि नहीं, इसने ये बात लिख दी यहाँ पे नशरुत्तीब में। कितनी गलतियां की हैं उसने। अभी तो तूने मुझे गलत बताया ना कि तूने गलत कहा है। सुन 1 मिनट, उसका भी जवाब मेरे पास है। नशरुत्तीब ने अशरफ अली थानवी सफा नंबर 12 के अंदर जो लिखा है, ये रिवायत पेश किया है, ठीक है ना। ये बेवकूफ कहेंगे सफा नंबर 11 पे है, 12 पे नहीं है। मेरी बात सुन लो अभी। सफा नंबर 11 पे है, 12 पे नहीं है। ये वाला जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरे पास है। सुन तो ए जाहिल, सुन तो क्या बोल रहे जाहिल, तुम्हारे पास बदतमीजी मत कर। देखिए मुसलमानों, मैंने बोल दिया तो मिर्ची लग गई, आग लग गई, हाई पावर की मिर्ची लगी, और ये साले बदतमीजी कर रहे हैं। तो इसका कोई नशरुत्तीब से है, ठीक है ना। हाँ सुनो ना नूर हसन, हाँ बोल। तुमने जो रिवायत पेश की है, तुम अभी मेरे किताब का सहारा ले रहा है नशरुत्तीब। अरे साले हरामी, साले जिना की पैदावार। अब तू कह रहा है कि हमारी किताब का सहारा ले रहा है, जाहिल। गाली मत कर। देखो ये मुल्ला गाली बकने लगा, देखो ये मौलवी है देवबंद का साला गाली बकने लगा। बताओ नहीं, जब ये बोल रहा था इसको बोलने तो अबे जाहिल, अभी तो मैं गलत पढ़ रहा था, अभी ये मैं सहारा भी लेने लगा, अभी ये मैं सहारा भी लेने लगा। बे जाहिलो, शैतानो, पहले अपने घर की तो खबर ले लो हरामियों। हाँ इसको पूछो ये कौन किताब का हवाला दे रहे। 1 मिनट टिक के रहने बोलो, इसको कौन किताब का हवाला दे रहा है। अबे जाहिल की औलाद, तेरे बाप की किताब नशरुत्तीब का हवाला दिया मैंने बोल तो दिया। गाली मत मार, गाली नहीं, तू मुल्ला है। अपनी औकात। हाँ नशरुत्तीब का हवाला दिया है, भेजूं तेरे पास? नंबर दे अपना, भेजता। मेरी बात सुन, मैं कबूल कर रहा हूँ। देखो मुसलमानों कबूल कर दिया। वो जो मैंने इसने कहा था, सुन, अब मैं तेरी यहीं पे जो है तेरी शिकस्त हो गई। तूने कहा था कि हुजूर की बशरियत असल है, नूर नहीं। हुजूर की जो हकीकत है बस ये गाली मत। देखो मुसलमानों, गाली बक रहा है। देखो मुसलमानों, ये गाली बक रहा है। अब ये कह रहा है कि तूने सही पढ़ा, मैंने मान लिया। तूने तो ये कहा था बे जाहिल, तेरे मुल्ला की कौन सी किताब में लिखा है कि हुजूर की जो हकीकत है वो बशर है? कौन सी किताब में लिखा है? एक किताब में लिखा हुजूर की हकीकत बशर है, एक किताब में लिखा। ओ जाहिल की औलाद, तो कितना बोल रहा है, अभी बोलने दो उसको। कौन से देवबंदी आलिम की किताब में लिखा है कि हुजूर की जो हकीकत है वो बशर है? चल एक किताब का हवाला दे। मैं एक किताब में तुमको 10 किताब का बैठे हवाला दे सकता हूँ। ला हवाला दे। चलो तो मैं भी सुनो, देखता हूँ ये दोगली पॉलिसी किस तरह चलती है देवबंदियों की। कहीं पे हुजूर की हकीकत नूर बताते हैं, जानता ही नहीं तू मुझको। अरे तेरे जैसे चिल्ले के पिल्ले कितने आते हैं डेली।
सुन बे नूर हसन, अब पता चल गया कुत्ता का पिल्ला कौन है। हाँ, अब पता चल गया कौन है कुत्ता का पिल्ला। हाँ नूर, देखिए मुस्तफा सुन के, ठीक। हाँ नूर हसन सुन रहा है ना? अरे सुन रहा हूँ कुत्ते की औलाद, साले मैं चुप रहता हूँ, सुनता हूँ तो तू जबरदस्ती बुलवाता है, हैं? जब सुन रहा हूँ तो सुनाता रहे ना। क्या बोलते हैं नसरुद्दीन सफा नंबर मान लो 6, 7, 8 पूरी फसल उसने कायम किया है। अशरफ थानवी ने पूरा फसल कायम किया है, नूर की रिवायत लाया है उसमें, ठीक है ना। अव्वल तो नसरुद्दीन में जो रिवायत लाई गई है, ये रिवायत मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ का हवाला दिया गया है। आज फिर नो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में ये रिवायत है ही नहीं। अल जुज़ुल मफ़क़ूद नाम का एक किताब जो छपा गया सन 933 हिजरी में, ठीक है ना। सन 933 हिजरी में सुलेमान बिन अब्दुल रहमान सुलेमानी ने ये किताब छापी है। उसी में ये किताब लाया ये रिवायत लाई गई है, और उस किताब का नाम अल जुज़ुल मफ़क़ूद रखा गया है, ठीक है ना। उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है, लेकिन अपनी हालत पे ये रिवायत नहीं है। वहां पे जो रिवायत है मैं तुमको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। अब एक मिनट अबे जाहिल तू तो चुप जा। पूरा बोलने तो दे। यहाँ मेरा और इसका हक है बोलने का, तेरा क्या हक है? चिल्ले के पिल्ले भी कैसे बोल रहा है? दे ठीक है सुन लो, तुम गाली बाद में देना, अभी सुन लो मेरे साथ, ठीक है ना। नसरुद्दीन में जो रिवायत लाई गई है आपके फतावा रिजविया जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 293, ठीक है ना। इसके अंदर मौलाना अहमद रजा साहब लिखते हैं, इस रिवायत के सिलसिले में लिखते हैं कि अव्वल तो ये रिवायत मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिल्द अव्वल सफा नंबर 7 और 13 के अंदर मौजूद है, लेकिन दरअसल वो रिवायत मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के हकीकी जिल्द में नहीं है, बल्कि अल-जुज़ुल मफ़क़ूद जो सुलेमान अब्दुल रहमान निखाने सुलेमानी ने लिखा है, ठीक है ना। दूसरी बात, फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 93 के अंदर लिखा है कि एक शख्स जब गलती करता है और दूसरा शख्स जब उस रिवायत को रिवायत करता है और उसके अंदर ततब्बु और तलाश और जुस्तजू नहीं करता है, तो उसी गलती को दूसरे शख्स भी रिवायत करते चला जाता है। जैसे कि इस रिवायत को अल्लामा सखावी ने अल मकासिद के अंदर रिवायत किया है, और इसको जैसे कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने रिवायत किया है, और मैं भी इसी रिवायत को आगे लेके जा रहा हूँ। ये तुम्हारा कौन लिखा है? फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 82 के अंदर, ठीक है ना। अहमद रजा लिख रहा है। अब सुनो, अशरफ अली थानवी के नसरुद्दीन के अंदर ये रिवायत लाया है, उन्होंने कोई तहकीक और कोई ततब्बु नहीं किया है, दूसरे की रिवायत करदा रिवायत को उन्होंने रिवायत कर दिया है। अगर वो तलाश करते और बिस्यार तलाश करते तो वो इस रिवायत नहीं करते, जबकि इस रिवायत की सनद मौजूद नहीं है। अगर कोई माइकलाल है तो इस सनद की, इस रिवायत की सनद पेश करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो मुसलमानों, एक मिनट, आखिरी बात, मुसलमानों, दूसरी बात थानवी को इन्होंने ही झूठा साबित कर दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, चुपिए ना, आप इतनी देर से बोल रहे हैं। हाँ चुप हो। तुमने हदीस के मतन पेश की, रिवायत की हदीस चावल से मतन नहीं चलेगी, बल्कि उसके सनद चलती है, ठीक है ना। दीन हम तक शरीयत जो पहुंची है वो सनद के साथ पहुंची है, बिला सनद कोई बात काबिल कबूल नहीं होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो थानवी जी ने यहाँ पर जो मतन किया है, तो थानवी झूठा हुआ कि नहीं हुआ? थानवी ने मक्कारी की कि नहीं की? मक्कारी की तो मक्कार हुआ कि नहीं हुआ थानवी? चलिए हुक्म लगाइए जरा, मक्कार आदमी को क्या कहते हैं? मेरी बात और बोलने की इजाजत दे दिया जाएगा, ठीक है ना। लास्ट से मेरी बात सुन लो, इसके बाद तुमको बोलने की खूब इजाजत दी जाएगी, तुम पूरा बोलते रहना, ठीक है ना। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, ये इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह, इसकी विलादत 129 हिजरी में है, ठीक है ना। और मोहम्मद बिन इसहाक़ सुलेमानी है, ये शख्स 933 हिजरी की विलादत इसकी हुई है। और मुहद्दिसीन इस शख्स के बारे में बयान करते हैं कि ये 10 सदी हिजरी तक ये शख्स बाकी था। चुनांचे यानी कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की जो पैदाइश 129 हिजरी, 129 हिजरी से लेकर के 900 यानी 10 हिजरी तक, इसके दरमियान मुकम्मल 700-750 साल का फासला होता है। इस दरमियान का सनद कोई बयान करे, सनद बयान कर दीजिए, हदीस काबिल कबूल हो जाएगी और मान लूंगा कि नबी नूर है हकीकत में। सनद के बगैर कोई बात काबिल कबूल नहीं। अब तुम बोल सकता है, बोलो क्या कहते हो नूर हसन? भाई तुम्हारी बात है पूरी। हाँ बोलो, मेरा 2 सवाल रहा और इस सवाल का जवाब अब तुम दे दोगे तो मैं मान लूंगा। अब ये बता दीजिए, जब ये बात सही नहीं है, बात तो सनद ही पेश कर, ये तो जनाब, जब ये बात सही नहीं है, सनद
साथ नहीं है, तो फिर जो इंसान सनद के साथ बात ना कर सके उसको क्या कहते हैं? झूठा, मक्कार, दज्जाल, मकरो फरेब वाला या नहीं? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी। ये दजल, ये मक्कारी थानवी जी ने की कि नहीं की आपके कहने के मुताबिक? नहीं है इसका मतलब कि तू सनद पेश नहीं कर सकता है। अरे मैं सब कुछ करूंगा, मैं तो सब कुछ करूंगा। मैंने अभी तेरे घर से ये हवाला किया है, मैं तो और बहुत कुछ करूंगा। अभी तो तूने मेरा एक ही हवाला देखा, अंबार लगा दूंगा, अंबार। तेरे जैसे चिल्ले के बिल्ले कितना अंबार देने की जरूरत नहीं, टेंशन मत ले अभी तू। लंगा के आया है, ना ना ना, राजा की तरह आया है। तो देख भाई, बदतमीजी मत कर। देखो मुसलमानों, ये बार बार बदतमीजी कर रहा है। ये आलिम है, जाहिल कहीं का। ये आलिम है, ये शैतान कहीं का। हालांकि ये जानता है कि मैं एक आम आदमी हूँ। मैं अगर इसे 1 करोड़ भी गाली बकूं तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये साला कमीना हरामी जिना की पैदावार, ये आलिम होकर बदतमीजी कर रहा है, बुजुर्गों की शान में गलत बोल रहा है। कौन आलिम है? कोई आलिम नहीं है। अबे जाहिल की औलाद, इसने तो कहा ना, इसने खुद कहा है कि ये आलिम है। छुपाने से, अब छुपाने से छुप थोड़ी जाएगा बे। देवबंदी, हनफी, सुन्नी, और क्या बोलेगा? अरे तूने, ये रजा है, ये रजा। तुम अपने पंडित को गाली दे रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। मैं अहमद रजा सानी हूँ। बहरहाल सुनना आप, जिसने दगा की, जिसने गद्दारी की, उसे क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं कि नहीं कहते हैं? दीन में गद्दारी करना। दीन का गद्दार हुआ थानवी के नहीं हुआ? बस अब ये बताओ। ये जवाब नहीं दे पाएगा। अरे अबे दीन का गद्दार हुआ कि नहीं हुआ थानवी? बस पहले इसका जवाब दे। दीन का गद्दार नहीं हुआ। दीन का गद्दार अगर उससे पहले कहना तो अहमद रजा को बोलो, जो फतवा रिजविया जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 92 के अंदर लिखा है कि एक शख्स गलती करता है तो दूसरे शख्स उस गलती में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा हम मानते हैं कि अशरफ अली थानवी ने गलती की है कि दूसरी की रिवायत को नकल। चलिए माशाअल्लाह, बस यही कबूल कराना था। मान लिया थानवी जी ने गलती की है, मान लिया थानवी जी ने गलती की है। अरे आपने मान लिया ना थानवी जी ने गलती की है। नूर वाली रिवायत करके उन्होंने नबी को अबे जाहिल कहीं के झूठे मक्कार, किसने कहा कि उन्होंने हकीकत में नूर नहीं माना? अल्लाह दिखा, सबूत पेश कर सबूत। मेरा नंबर ले, अभी भेज मेरे पास हमारा कहीं का। हरामकारी हो, देखिए मुसलमानों, देख रहे हैं ये मुल्ला जी गाली बक रहे हैं, इसकी पूरी जरूरत नहीं दे सकेगी। अब दूसरा हवाला सुन, अब दूसरा हवाला सुन, अब दूसरा हवाला सुन, दूसरा हवाला सुन। दूसरा नहीं, पहला तो दो। अरे अरे खबीस कहीं के, अभी तो मैंने कहा ना अंबार लगा दूंगा, अंबार। एक दो नहीं, अंबार पेश करोगे, एक अंबार जवाब न दे सका तो दूसरे क्या दे? अंबार लगा दूंगा, हदीसों के अंबार। एक नहीं, हजारों दलील दे सकते। सुनो, अरे सुनो, अच्छा हदीस पाक को मानते हो कि नहीं मानते हो? 4-5 की करबो? मैं किताब के हवाले से जवाब दे रहा हूँ, जो कि तुमको किताब आता ही नहीं पड़ती। देख रहे हो मुसलमानों, मेरी बात कोई नहीं सुन पा रहा है ये। मैंने तो कहा कि मैं अंबार लगा दूंगा, ढेर लगा दूंगा, इतने हवाले दूंगा कि दब के बदन सब मर जाएगा, कयामत तक नहीं उठ पाएगा। हाँ, ये एक का जवाब हदीस सही है, ये किताब का नाम है, और इस किताब के राइटर जो है वो यही लोग हैं, देवबंदर लोग, जिसका नाम है मोहम्मद महफूज अहमद। समझे जनाब? अब देखिए वो क्या लिखते हैं अपने हदीस। बोलना बे, डर लग रहा है हजरत इमाम, अरे सुनना, हजरत इमाम अहमद रजा देवबंदी हनफी। देख रहे हो मुसलमानों, में इधर सबूत दे रहा हूँ कि हुजूर फरमाते हैं, मेरी माँ ने देखा कि एक नूर उनसे खारिज हुआ जिसने शाम के महल्लात को रोशन कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वतन मुबारक में हैं, समझे मुसलमानों, और मेरे आका की वालदा उस नूर के जरिए से शाम के महल्लात को जो है देख रही हैं। मैं दूसरा हवाला सुन, पहले जवाब तो दे। दूसरा हवाला सुन। जवाब न दे सका। अबे हराम की औलाद, किसने कहा कि एक हवाला एक जवाब नहीं दे सका? बे जाहिल, तेरे घर से सबूत पेश कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर भी हैं। सुन, और मैं दोनों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दोनों आयतों को कुरान से साबित कर दूंगा, समझा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत नूर है, नूर, और मेरे आका की जो बशरियत है वो बज़ाहिर है, समझा? आखिरी बात और इंतहा बात, ठीक है ना?
تو نے نور اور بشر مانتے ہیں، یہ نور اور بشر یہ عقیدے کی بیان میں سے ہے یا جزیاتی مسائل ہے؟ بولتے پھر وہی بات، یہ عقیدہ ہے، عقیدہ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ مسلمانوں کا جو ٹھیک ہاں مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اس کو قرآن سے میں ثابت کروں گا، قطعی نص قطعی سے میں ثابت کروں گا، بشریت اور نورانیت، بشریت اور نورانیت۔ دیکھ سن اپنے پاپا کی ایک کتاب اور سن، امداد السلوک۔ یار دیکھو مسلمانوں، میں اس طرح بات نہیں کرتا ہوں۔ اچھا تو من گھڑت بھی اگر کہیں تو تیرے ملا جی نے کہی، تھانوی جی نے کہی، اگر من گھڑت بھی باتیں بنائی تو تیرے ملا جی نے کہی۔ اب دیکھ مولانا رشید احمد گنگوہی کی کتاب یہ سن، ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے؟ امداد السلوک کتاب کا نام ہے، اور قرآن پاک کی آیت لکھتا ہے، کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ وکتاب مبین۔ کاٹ کے مت بھاگنا، دیو کا بندرو، کاٹ کے مت بھاگنا۔ ان کے جو بندر ہیں، ان کے بڑے پاپا جی نے یہ کہا، کیا کہتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا۔ تمہارے پاپا جی کہہ رہے ہیں حضور کے جسم اقدس کا سایہ بھی نہ تھا، ظاہر ہے کہ نور کا سایہ پلے کے پلے سن، تیرا باپ کیا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ بھی نہ تھا، ظاہر ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ سمجھے؟ صحیح حدیث سمجھے؟ تمہارے دیوبندر کہہ رہے ہیں تبع جد دیوبندی گنگوہی، کیا بات ہے، بڑا زبردست جو ہے اس میں شور شرابہ کیا ہے۔ ابے چلے کے بلے بولتا کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے؟ او ہیلو، ارے بولتا کیوں نہیں ہے بے چلے کے پلے؟ اے مختار تو بول، بس شیطان کہیں کے جواب دے اس بات کا، تیرے باپ نے اپنی اس کتاب میں یہ کیوں لکھا؟ جلدی بول۔ اس کتاب کا نام ہے امداد السلوک، تیرے پاپا جی کی کتاب ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اور تیرے پاپا جی نے ایک بات اور بڑھا دی کہ حضور کا سایہ نہ تھا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے ہی، مگر تیرے پاپا نے بھی یہ بات بڑھائی ہے، اور تیرے پاپا نے پھر اور کہا کہ ظاہر ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ او شیطان کے پتر بول، ابھی سالے یہ دوسرا حوالہ ہے، پورا بریلی شریف کا بانس جب تک اندر نہ ڈال دوں گا، تمہاری کہ آواز نہ نکال دوں، چھوڑوں گا نہیں تم کو۔ مسلمانوں یہ تو چلے گئے، یہ مجھے بولنے بھی نہیں دیتا۔ میں چاہتا ہوں کہ پیار محبت سے، ادب و احترام سے بات ہو تو بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کیا اور بشریت کو پہلے لایا۔ اس نے کہا کہ پہلے حضور کی بشریت ہے، بعد میں جو ہے وہ نورانیت۔ مگر میں کہتا ہوں، اور اس کا تھانوی کہتا ہے، میرے سارے بزرگ کہتے ہیں کہ حضور کی حقیقت نور ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ بتائیے مسلمانوں، اور سالے ملا بن کے مولویت کر کے پتہ نہیں سالے کون سے جو ہے مدرسے میں پڑھتے ہیں، جاہل کی اولاد، کون جاہل ان حرامیوں کو پڑھاتا ہے کہ میرے نبی کا ہی جو ہے وہ دشمن بن جاتا ہے پڑھ لکھ کے، اسی لیے پڑھایا جاتا ہے۔ بھائی حرامیوں تمہیں، نزد کے ناجائز اولادو، تمہارا پاپا دوسرا کہتا ہے کہ گنگوہی دیوبندی لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے؟ احمد رضا بھائی، او احمد رضا بھائی، کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ، ہاں اول ما خلق اللہ نوری، سمجھے؟ یہ حدیث نقل کی، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی کچھ اصل ہے، سمجھے؟ فتاوی رشیدیہ۔ اب اور میں دیتا ہوں، حاجیت المہدی کا بھی ہے، یہ وہابیوں کا یہ مانے گا نہیں، وحید الزمان حیدرآبادی کا ہے۔ میں بہت سے حوالے دوں گا، اس کے گلے میں اتنے حوالے ڈالوں گا کہ بدن سے قیامت تک نہیں اٹھے گا، سمجھے حضرت؟ اور میں اپنے بزرگوں کے نہیں،
میں انہی شیطانوں کے بزرگ بہت میرے پاس حوالے ہیں، بہت زیادہ. ہلو، کیا ہو رہا ہے ادھر؟ مشین چل رہی ہے کیا؟ ہلو ہلو، ہاں مشین چل رہی ہے کیا ادھر؟ میرے گھر کے نیچے چل رہی ہے. اچھا اچھا. اتنے حوالے ہیں میرے پاس نور کے تعلق سے کہ ان کا جنازہ نکال دوں گا. قیامت تک یہ لوگ نہیں اٹھیں گے، سر نہیں اٹھائیں گے، حرام کے پلے. اس میں ایک اور دوسرا حوالہ ہے میرے پاس، اس میں بھی یہی چیز ہے. سمجھے حضرت؟ یہ اشرف تھانوی کی ایک کتاب ہے، سمجھے، جس کا نام ہے تذکرۃ الحبیب. اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نورانیت کو یوں بیان فرمایا: اے جابر، اللہ عز و جل نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. نصر الدین کا حوالہ بھی دیا اس میں. سمجھے حضرت؟ ہلو ہلو، ہاں، اس کا بھی حوالہ دیا. پھر باقی جنت کا حوالہ دیکھو، یہ بھی دیوبندیوں کی کتاب ہے. اس میں بھی نصر الدین کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں اس کتاب کو اتنا انہوں نے مشہور کیا اور اسی کتاب کا یہ رد کر گیا. واہ، اس سے اچھا کیا ہوگا؟ اس سے اچھا کیا ہوگا؟ میں اس کا نمبر اور اس کا فوٹو ڈال کے اس ویڈیو کو ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے حضرت، باتیں بہت ہو گئی. ہاں حضرت، حوالے بتانے کے لیے تو میں اور بہت بتاؤں گا، بڑے حوالے ہیں ان کے. سمجھے؟ باغ جنت کا بھی ہے، قصص الانبیاء کا بھی ہے. یہ قصص الانبیاء کی ہے. کسی کام میں تو نہیں ہو بھائی جان؟ ہلو، مولانا احمد احتشام. اچھا، احتشام الحسن ندوی ہے یہ. واہ بھائی واہ، کاندیلوی. اس نے بھی اس میں یہی دیا ہے بھیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتا رہا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ ہلو جی بھائی جان. ہلو، ہاں اچھا یہ اچھا سنو، ایک اور ان کے بڑے پاپا کی کتاب آ گئی، ایک روزہ. اس میں بھی لکھا ہے کہ حدیث نور کے تعلق سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: اول ما خلق اللہ نوری. ترجمہ: اللہ سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، یعنی میں نور کو پیدا کیا. بتائیے کتنی یار باتیں پیش کر دوں، کتنی. سب سے پہلے نور. ارے بہت حوالے ہیں بھائی جان، بہت زیادہ. یہ اسی لیے تو بھاگ گیا، سمجھے. اور دیکھو بھائی جان، اب احمد رضا بھائی دیکھو، ان کے پاپا کی ایک کتاب ہے، ان کے پاپا کو جو ہے وہ نور مجسم کہا گیا. کتاب کا نام ہے مرثیہ، اور اس میں لکھا گیا کہ چھپائے جانے فانوس کیوں کر چمے روشن کو، پھر اس نور مجسم کے کفن میں وہی عریانی. بتائیے جناب، رشید احمد گنگوہی کو نور مجسم کہا گیا. یہ حضور کو نور نہیں مانتے شیطان کے پتر. مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اگر آپ حضور کو امتی ہو تو فیصلہ کرو. اللہ حافظ، فی امان اللہ. جن لوگوں کے پاس میرا چینل سبسکرائب نہیں ہے سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.